ہر 12 ربیع اول میں آتا ہوں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ علم کا خزانہ ہے جی۔ مدنی مذاکرے میں بے شمار باتیں سیکھنے کو ملی، زیادہ روحانیت ہے، فیض بھی ہے یہاں پر۔ مدنی مذاکروں کی محبت نے کھینچ لی ہے الحمدللہ۔ وہ چیزیں سیکھنے کو ملی کہ جو باہر سیکھنے کو نہیں مل سکی۔ عشق مصطفیٰ ملتا ہے، عشق صحابہ ملتا ہے، عشق اہل بیت ملتا ہے، اور عشق اولیاء کرام میں اضافہ ہوتا ہے، اور روح تازہ ہو جاتی ہے انسان کی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ جیسے ہی فیضان مدینہ کے گنبد پہ نظر پڑتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا سکون الحمدللہ محسوس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، یہاں کے بہاریں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ اخلاقیات کے حوالے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہاں تو میں کہتا ہوں سب کچھ چھوڑ کے آنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا جو انداز ہے وہ سیکھنے کا، سمجھانے کا بہت ہی نرالا انداز ہے۔ مرشد پاک نے آج بتایا کہ جو ایک بالشت کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا اس کو 7 زمینوں کا توق ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ گفتگو کے آداب ہم نے سیکھے اور مسجد کے آداب ہم نے سیکھے۔ فیضان مدینے کی بہاریں دیکھ کر دل اتنا باغ ہو گیا کہ مدینے کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہاں کی لائٹنگ دیکھ کر یاد آتا ہے کہ یہ الحمدللہ فیضان مدینہ ہے تو مدینہ کا عالم کیا ہوگا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں تو واقعی روح کو سکون ملتا ہے۔ مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، جب مرشد کی ڈائریکٹ زیارت کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں سب کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی مدنی مذاکرہ گھر پر ہیں تو گھر پر دیکھیں، اگر یہاں مدنی مرکز میں موجود ہیں تو مدنی مرکز میں لازمی شفقت فرمایا کریں۔ یہاں پر عشق و محبت کا ایسا ماحول پایا جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر عشق رسول میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے امیر سنت کو درازی عمل بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے، آمین۔ ایک لائیو دیکھنا امیر اہل سنت کا ماشاءاللہ چہرہ مبارک دیکھنا کچھ کافیت اور ہوتی ہے۔ اللہ پاک امیر علیہ سنت کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی مدنی مذاکرے میں بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں علم دین کے بہت سارے موتی بکھرے ہوئے ملتے ہیں ہمیں۔ دل تو کرتا ہے یہاں رہیں، پاکیزہ ماحول میں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور مرشد کی زیارت کرتے ہی بس قافلوں میں سفر کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں کا دل لگ گیا اور مدنی مذاکروں سے کثیر فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ہر ماہ 3 دن کا قافلہ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ میری نیت یہ ہے کہ میں ساری زندگی ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کرتا رہوں گا۔ میری نیت ہے کہ ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں بھی سفر کروں گا اور 1 ماہ کے قافلے میں بھی سفر کرنے کی نیت ہے۔ مدنی مذاکرے جتنے بھی ہوں گے ربیع الاول تک وہ بھی، اور آئندہ کے جو ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ہفتہ وار دیکھیں گے۔ انشاءاللہ میں 13 ربیع الاول تک مدنی مذاکرہ دیکھنے کی پکی نیت کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود عاشقان میلاد، آپ نے سنے پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے عاشقان میلاد کے تاثرات۔ اگر آپ بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدنی مذاکرہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب۔ میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا۔ بیٹا، اسلامی بہنوں کی محفل گھر کے اندر رکھی ہے۔ ابھی تو اتنے کم لوگ آئے ہیں، محفل ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ البحر علام والموج صغار، دادا جان آپ نے مجھے مائک کیوں نہیں دیا؟ میں آپ سے نہیں بولتی۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، مالک و مختار، سب کے ہیں غم خار، سب کے ہیں غم خار۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ فخر فلک
فخر زمین آیا ہے مرحبا فخر فلک فخر زمین آیا ہے مرحبا مالک فردوس پری آیا ہے آیا ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ ندی ندی مرحبا آئے سرکار آئے میرے سرکار آئے سرکار آئے میرے سرکار سمندروں میں روانیاں ہیں روا دواں ساری کشتیاں ہیں ہے کیف کیسا کہ دل کی دھڑکن رکی رکی ہے تھمی الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله 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 سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اس وقت میں رفاعی سلسلے کے کچھ عاشقان رسول ہیں، ان کے ساتھ موجود ہوں۔ شیخ ابو صالح ہم ان کے گھر میں موجود ہیں، اور شیخ عدنان یہ بھی یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ مریدین اور شاگرد وغیرہ بھی یہاں موجود ہیں۔ منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ ابھی جاری تھا، درود پاک پڑھتے ہوئے زیارت کی صورت کی گئی، چومنے کی ترکیب بھی تھی اور آنکھوں پہ رکھنے کا سلسلہ بھی تھا، سر پہ رکھنے کی صورت بھی تھی، اس کے علاوہ دیگر کچھ اور تبرکات وغیرہ بھی تھے۔ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی داڑھی مبارک کا بال بھی تھا، اس کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی، اور باب کعبہ کا غلاف یہ بھی تھا، اس کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی۔ منہ مبارک کی زیارت کے آداب یہ کیا ہیں، برائے کرم یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اور شیخ عدنان ان کے پاس یہ ایک لیٹر ہے، عثمانی رسم الخط میں ہے، جس میں منہ مبارک کی تصدیق ہے، اور بعض اداروں کی طرف سے اس پر سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ منہ مبارک جو ان کے پاس موجود ہے یہ واقعی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بال ہے۔ اور اس کی دوسری طرف بھی ایک تحریر ہے جو عربی زبان میں ہے، اور اس تحریر پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، مختلف مہریں ہیں، دستخط ہیں، اور یہ تحریر تیار ہوئی ہے بغداد شریف سے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان کے پاس جو غوث پاک کی داڑھی شریف کا بال ہے یہ واقعی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ان کی داڑھی ہی کا بال ہے۔ تو اس میں سوال یہ تھا کہ کیا لیٹر کا موجود ہونا اور اس تصدیق کا ہونا ضروری ہے کہ یہ واقعی منہ مبارک ہے یا کیا؟ اس حوالے سے برائے کرم کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف
जब कभी दाखिल मस्जिद होने की शहादत पाए एहतिकाफ की नीयत जरूर फरमा लिया करें। आज 1448 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 5वीं शब है। इस मुनासबत से ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 5। नमाज के बाद हम्द सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह तबर्रुकात की ज़ियारत का एक मंजर पेश किया गया। इसमें एक तो सवाल यह था कि मुए मुबारक की ज़ियारत के आदाब, दूसरा ये कि इसकी तस्दीक के मुताल्लिक़ात, क्या क्या तस्दीक की सूरत है। खैर मैं उस वक्त तो गौर कर रहा था कि इस इदारे की तस्दीक, इस इदारे के मोर तो ये तो सर से गुजर रही थी मेरे की ये इदारे कैसे तस्दीक कर सकते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुए मुबारक की। मुए मुबारक की तस्दीक यूं तो हो सकती है कि मिसाल के तौर पर किसी सहाबी नबी से चलेगा, सहाबी से ही मुए मुबारक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया था, इन्होंने अपने फुला बेटे को या फुला अपने खादिम को अता फरमाया, उसने उसको अता किया। तो इस तरह ये इनके पास करम फरमा हुआ, ये तो इसकी डिटेल समझ में आती है। बाकी इदारों की तस्दीकात तो समझ में नहीं आती, मेरी कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। मैं सोच रहा था कि ये अनकस मशवरा है कि ये सवाल जो है ना ये चलाए ना जाए बाद में, कि कोई की भी किसी भी समझ में नहीं आएगा इदारे क्या तस्दीक करेंगे। इनके बाद ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है। और जो मैंने बात की लॉजिकली जो हिकमत वाली कि वो हकीकत होता भी यही है कि यूं जैसे खिलाफतें चलती हैं, इसने उसको खिलाफत दी, उसने उसको खिलाफत दी, तो यूं मशाइख की खिलाफत का सिलसिला होता है ना, वो जाकर होते 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 सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस पीर साहब का सिलसिला पहुंचता है ना वो दुरुस्त है, बाकी नहीं है दुरुस्त। शर्त है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे सिलसिला, ये औलाद के तौर पे नहीं, खिलाफत के तौर पे। एक कादरी सिलसिला मौला अली शेर खुदा तक पहुंचता है, तो मौला अली शेर खुदा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं है, लेकिन मतलब खलीफा है। यूं खलीफा इनके खलीफा इनके खलीफा, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो यूं कादरी सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। तो खैर बाल मुबारक का मामला बड़ा है सेंसिटिव है, और इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मैंने पता रजवे में पढ़ना याद पड़ता है कि जिस तरह हदीस पाक की सनद की एहतियातें होती हैं, मुँह मुबारक में भी यही एहतियातें की जाए कि है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ही है। सरकार की तरफ किसी शय का मंसूब होना ये आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। फफहम। अच्छा, अब हम लोग क्या करें? हम तस्दीक तो करने से रहे, हमारे जैसे कि इदारों ने तस्दीक ये मोहर सब्त कर दी, हम तो करने से रहे, पता कैसे चले कि ये। तो हम मतलब ये कि जब कोई शय मशहूर हो जाए उसकी तहकीक हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इसके मुकल्लफ नहीं है, हम उसका एहतराम करेंगे, हमें सवाब मिलेगा। इसलिए कई लोग सैयद मशहूर होते हैं, अब खुदा ही बेहतर जाने, हमारे पास कोई सा आला तो है नहीं कि इनकी सियादत को हम चेक कर सके, इनकी स्कैनिंग कर सके। भाई ये बोलते हैं मैं सैयद हूँ, ठीक है सैयद साहब, जाहिर है कि यही है ना। इन्होंने कैसे बोला? अब्बू से सुना, अपने अब्बू ने किससे सुना? दादा से सुना। अब ये कि सुनते सुनते एक दूसरे से सैयद चले आ रहे हैं, कहीं रास्ते में कट भी हो जाते हो तो भी ताज्जुब नहीं है।
बास किसी ने जाली तौर पर ऐलान कर दिया सैयद हूँ मैं, और एहतराम पाने के लिए, नजराने वसूल करने के लिए, खुदा न खास्ता उसी की नस्लें चली आ रही हूँ। तो ये खैर ये वहमात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक जो मसला है या जो इसकी गहराई है वो अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन हजरत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि जिस सैयद का सिलसिला नसब साबित नहीं है, जाहिरी तौर पर हमारे पास सबूत नहीं है, यानी उसके पास सबूत नहीं है, वो एक कागजात तहरीर वगैरह, तब भी चूंकि वो सैयद कहता है, कहलाता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरकार की निस्बत की वजह से इसकी ताजीम करना ज्यादा सवाब है। क्योंकि जिसका सिलसिला नसब सामने होगा, इसका वालिद, उसका वालिद, उसका वालिद करके फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बीवी फातिमा से होता हुआ पहुंचा, तो इसमें तो दिल ज्यादा ठुकेगा। लेकिन असली तो वो कि निस्बत की वजह से जिसका शजरा नहीं मिल रहा अपने को, उसका एहतराम करना, तो ये ज्यादा सवाब है। ये इन्होंने इस तरह की, ये भी अक्ल में आने वाली बात है। तो जैसे वो नमाज के ताल्लुक से कि दिल लग रहा है, लुत्फ आ रहा है, सुरूर आ रहा है अपनी जगह पर, लेकिन जिसको सुरूर नहीं आ रहा नमाज में, दिल भी नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह का फर्ज समझ कर वो अदा कर रहे, पढ़नी तो है नमाज, तो यूं मतलब इसका सवाब कम नहीं है। एक को तो मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहा है, दूसरे को मजा नहीं आ रहा फिर भी अल्लाह के बारगाह में झुके जा रहा है, तो इसका अपना मकाम है। इसी तरह सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह मुबारक, इसकी तस्दीक कौन करेगा? हम मान लेंगे और क्या। बाकी इदारों की या मजार शरीफ के मुजाबिर की तस्दीक नथिंग, कोई समझ में नहीं आती, कि पता कैसे चलेगा। खैर ये बातें हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें कोई फिक्री मसला तो है नहीं। लेकिन मैंने जो बात की इसका कोई रद्द भी कर शायद नहीं कर सके, मुश्किल है, क्या दलील देगा, कहाँ से लाएगा। तो ये इस तरह की तस्दीकात लेनी नहीं चाहिए। किसी ने मुंह मुबारक अता किया, लिखा हुआ दिया, मतलब लिखा हुआ भी नोट छप जाते हैं यार, तो अगर लिखा हुआ दिया भी तो अब इसकी क्या तस्दीक कैसे करेंगे? लिखा हुआ दुरुस्त है नहीं ना कोई, तो वो मानने वाली बात है। हम अगर मुंह मुबारक किसी के यहाँ जलवा फरमा है, हमें जियारत की, हमको सवाब मिलेगा। हम तहकीक के मुकल्लफ ही नहीं है। बाद लोगों ने इस पर उधम मचाया हुआ है तबर्रुकात के बारे में, कहाँ से सबूत है, यहाँ से सबूत है। मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, ये लोगों को दूर कर रहे हैं तबर्रुकात से। इस तरह के लोग नादानिस्ता, ये भी ना किया जाए, खामखा हर मामले में शुकूक और शुबात में मुब्तला किया जाए। मैं शुकूक में मुब्तला नहीं कर रहा, मैं शुकूक को रफा कर रहा हूँ कि हमें तहकीक के हम मुकल्लफ नहीं है, कि जो भी है ये हमारे सामने मुंह मुबारक कह रहा है, हम इसका एहतराम करेंगे, हमको सवाब मिलेगा। इतना, जैसे सैयद की मिसाल दी मैंने। अब ये कि इसके आदाब, अच्छा जो रुकन शूरा जिनका था ना, वो भी जिन हजरात के यहाँ गए थे ये देखने, उनको ये सारी मेरा ख्याल ना समझाए ये बयानात, कि उनको समझाना, हम लोग ये अहले अरब हैं और फसी होते, फुसहा होते हैं, हम ज़रा समझा ना पाए शायद, तो इसलिए अब वो मैंने जो अर्ज किया उसको आप अपने ज़हन नशीन फरमा लें। और क्या ये सवाल है कि ना चले, इसको कट हो जाए। मुँह मुबारक की ज़ियारत का मेन तो वो कि दुरूद पाक पढ़े और तसव्वुर करे कि प्यारे हक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुँह मुबारक हैं, ये वो यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का एक हिस्सा है, पार्ट है, हिस्सा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर का हिस्सा अगर ये तसव्वुर बंधता है तो फिर कैसा कैफियत कैसी होंगी। दुरूद पाक पढ़ता रहे, ज़ियारत करे जब तक कर पाता, लेकिन जब लाइन लगी होती है तो ज्यादा रुके नहीं, रुकेंगे तो लोगों को इससे हर्ज होगा और शायद रुके भी नहीं देंगे, वो
हटाते रहते होंगे, धक्का मार मार के आगे बढ़ाते रहते होंगे। दुरुस्त पढ़े, वहाँ हाजिर होकर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो वहाँ मुँह मुबारक की हाजिरी के वक्त दुआ खैर करे, अल्लाह पाक से दुआ करे। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाँ, ये है कि दिखाने में यूं करके इशारा ना करे। ये मेरे ज़हन में अभी अभी आया कि यूं अगर करते हैं तो यूं ना करे। ये एक अदब वाला अंदाज नहीं है। कोई बुजुर्ग बैठे हों और हम बोले कि तो इनका कह रहा ये नहीं है, हाँ ये पीर साहब है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, यार ये क्या कर रहा है। सरकार के मुँह मुबारक चांद की तरफ भी उंगली से इशारा करना मना है। हालांकि चांद कोई बजाते खुद कोई मुकद्दस शे नहीं है, एक सैयारा है, जैसे जमीन सैयारा है, चांद भी सैयारा है, सूरज भी सैयारा है। लेकिन उंगली उठाना मना है इसका। इसकी कोई हिकमत भी है यार, जहन से निकल गई है। हाँ, जमाने जाहिलियत में कुफ्फार जो थे वो चांद की तरफ उंगली उठाते थे, तो इसलिए उनकी नकल करने से हमें मना किया गया है। और वो चांद की तरफ रुख करके शायद दुआ मांगते थे। हाँ, इसीलिए कि वो चांद की तरफ रुख करके अपने जो भी अंदाज में वो दुआ या करते थे। तो हमें यह कि हम चांद की तरफ जब चांद देखें हिलाल, तो चांद की तरफ रुख करके दुआ ना मांगे, बल्कि पलट जाए या दाएं बाएं हो जाए, मतलब चांद की तरफ हमारा चेहरा ना हो दुआ मांगते हो, कि ये भी उनकी मुशाबत हो जाएगी, तो ये भी मना है। और जब मेरे क्लिप चलते हैं चांद देखने के, तो शायद नोट किया भी हो, मैंने कहा भी है, चांद की मौजूदगी में कहा कि हिलाल देख कर यूं करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, बाद लोग थोड़ा वो जज्बाती होते हैं, ये वहां बहस करते हैं कि ये सरकार का बाल मुबारक नहीं है, ये कहाँ से आया, क्या सबूत है, इस पे होते झगड़े। इस पर बाज़ औक़ात कत्ल व गारतगरी की भी इत्तलाएं हैं, मार डालते हैं कि ये गुस्ताख है, मुझे मुबारक, ये तौहीन करता है। तो इस तरह की बातें ना की जाए कि क्या सबूत है, क्या है। ज़ियारत करे आदमी निस्बत की वजह से, जैसे सैयद की मिसाल दी, आप कहाँ पे, तो फिर कोई किसी को पता ही नहीं है, बाप फुला को बाप बोलते अपना, है कोई सबूत किसी के पास कि यही मेरा बाप है? सवाल ही नहीं। सबूत तो कहाँ से लाएंगे? मर जाएंगे तो नहीं ला सकते, हम मर जाएंगे तो पता चल जाएगा क़यामत के दिन कि ये बाप था वाकई। तो इसलिए मतलब हर चीज का सबूत कतई मांगना, ये और फिर हर एक से मांगते हैं फिर ना, इसका सबूत क्या, उसका सबूत क्या है, तो तेरा तू की फुला का बेटा, इसका सबूत तेरे पास क्या है? कोई सवाल से टकर जाएगा तो आप कभी भी साबित नहीं कर सकते अपना बाप, कोई भी नहीं साबित कर सकता। लेकिन ये कि लोगों से सुना है, माँ से सुना है, दूसरों से सुना है, तो बाप बोलते हैं इसका अदब करेंगे, खिदमत करेंगे, सवाब मिलेगा, नाफरमानी करेंगे, गुनाह मिलेगा, क्योंकि इतने सबूत तो है बाप के, सब बता रहे हैं तुम्हारा बाप है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो बात किसी की शोहरत होना भी सबूत होता है। जैसे मज़ारात औलिया किराम, ये औलिया किराम के मज़ारात, ये वली फुला वली का मज़ार है। अब ये कि हमने तहकीक की कोई, कहाँ कैसे करें, हमने मान लिया सवाब मिलेगा, हाँ भाई ये फुला वली का मज़ार है, इसकी डीप जाना तो वही कि अपने बाप की डीप को जाएगा। तो यहाँ शरीयत ने हमको इसका मुकल्लफ भी नहीं किया, ऐसी डीप जाओ तो ही एहतराम करो, वरना नहीं। दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, बाज़-औक़ात चोर दाढ़ी रख लेते हैं। नमाजी धोखा नहीं देता, बाज धोखेबाज नमाज पढ़ लेते हैं। बुराई को खत्म करें, नेकी को निशाना ना बनाएं। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया की इस तहरीर से मुताल्लिक आप क्या इरशाद फरमाएंगे? है तो अच्छी है तेरी, मजे की है ना। बोला दाढ़ी की आड़ में शिकार, यूं भी एक मुहावरा है लोगों का जो गलत है। दाढ़ी अपनी जगह पर है,
दाढ़ी तो आई बाद में आई, सबसे पहले तो मुसलमान है ना। दाढ़ी नहीं भी रखी किसी ने, शेव्ड है, फिर भी मुसलमान अगर है तो मुसलमान तो है ना। दाढ़ी शर्त नहीं है कि मुसलमान हो तो दाढ़ी हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। और दाढ़ी वाले गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो दाढ़ी होना ये भी जरूरी नहीं कि मुसलमान ही है। तो बारह लेके चोर जो है ना बाद में दाढ़ी रख लेता है, इसलिए दाढ़ी वाले को चोर ना कहा जाए, चोर ने दाढ़ी रख ली। नमाजी धोखा नहीं देता, बाद धोखेबाज नमाज पढ़ लेते हैं। अरे यहाँ समझाना ही चाहता कि वो इबादत को निशाना ना बनाया जाए। नमाज पढ़ के ऐसा करता है, दाढ़ी रख के ऐसा करता है, जैसे बोलते हैं सैयद हो के ऐसा करता है। तो ये तो मैंने सैयद होकर ऐसा करता है, इस पर तो चंद बार मैंने मदनी मुज़ाकरे में समझाया भी है कि इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता कि हमारे बेटे को कोई हम अपने औलाद को सबसे ज्यादा जानते होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे की कोई बुराई करेगा हमको पसंद नहीं है, मजा नहीं आता कि बच्चे की कोई बुराई करे कि इसका बच्चा बड़ा शरारती है, बड़ा शैतान है, तो कैसा बुरा लगता है यार। और हमको पता है कि हमारा बच्चा कितना शरीफ है, लेकिन फिर भी बुरा लगता है। तो अब ये कि सैयद किसका बेटा है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। तो अब इसको हम बुरा कहते हैं कि ये सैयद होकर ऐसा करता है, सैयद होकर ऐसा करता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद आता होगा ये जुमला, सरकार का बेटा यूं करता है, मफहूम तो ये बनेगा ना जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैं वाकयात बताता हूँ कोई भी इस तरह के, मुझे पता होता है कि ये वाकया सैयद की तरफ मंसूब है, तस्करा नहीं करता कि ये सैयद है, कोई जनरल करके गुजर जाता हूँ। सैयद कह कर बोलूँ कि इसने यूं किया, ये मुझे मतलब जमता नहीं है। मैं अपनी औलाद पर गौर करता हूँ, मेरी औलाद को कोई कहता तो मुझे जमता नहीं है, तो मैं यार ये सैयद के लिए, सरकार की औलाद के लिए कहूँ कैसे, एक निशानदही करके, नॉमिनेट करके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अगर लोग इस तरह लोग किसी के जज्बात, एहसासात और कल्ब पर गुजरने वाली गिरा बात का अंदाज़ा कर लेते हैं हुजूर, तो आपको नहीं लगता कि माशरा बदल जाता? क्योंकि बोलते वक्त ये सोचना कि यार ये मेरी गुफ्तगू, मेरा ये लफ्ज़, मेरी ये बात सामने वाले पर क्या असर डालेगी, ये सोचने की ऐसा लगता है कि शायद सलाहियत जो है ना वो अब या तो कम है या ख़त्म होती चली जा रही है। लोग गलत मुहावरे बना लिए हैं लोगों ने। एक मुहावरा मुझे याद आ रहा, बहुत बत्ते सी भी है, मैं बोलूंगा नहीं वो, लेकिन नवाजी के लिए बोलते हैं, ऐसा गंदा मुहावरा बोलते हैं नमाजी के लिए, इनकी आखिरत को इनको फिक्र ही नहीं है। क्या जो नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, चोर है, डाकू है, कुछ भी है, अगर वो नमाज पढ़ रहा है और दुरुस्त पढ़ रहा है तो है तो नमाज ना यार, सजदा तो अल्लाह ही को कर रहा है, बुत को तो नहीं कर रहा, तो नमाज को क्या को छेड़ते हो यार। ये है लोगों में अजीब और गरीब मतलब तमाशा बना रखा है, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बाद औकात ऐसे लोग नमाज पढ़ते होते हैं, चोर डाकू, और ये कि नमाज इनको बचा भी लेती है, सुधर भी जाती है। तो हदीस पाक में भी है ना, एक नौजवान का वाक्य है, याद हो तो। ये तो जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो इसकी तफसीर में कई इस तरह की रिवायतें हैं कि आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई कि फ़ुलां ये नमाज पढ़ता है लेकिन साथ में फ़ुलां फ़ुलां गुनाह करता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसकी ये नमाज इसको एक दिन इस गुनाह से रोक देगी, और फिर ऐसा ही हुआ। बेशक तो यूं मतलब है कि नमाज को ना छेड़ा जाए। नमाजी डाकू, एक बयान था मेरा बहुत पुराना ऑडियो में, ये गालिबन फुज़ैल बिन इयास के बारे में था, है ना। आखिर नमाज की वजह से ये ऐसे डाकू थे कि माएँ बच्चों को सुलाने के लिए डराती थी, ए फुज़ैल आया, तो सहम कर सो जाते थे बच्चे, चुप हो जाते थे। ऐसा इनका मतलब रौब था उस दौर में। लेकिन बहुत बड़े वलीयुल्लाह
बनकर उभरे, तौबा की, तो यूं नमाज आदमी को रोक लेती। जैसे कुरान शरीफ की आयत आपने सुनी, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि नमाज, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, मना करती है। इसलिए वो नेकी एक तरफ लाख गुनाह, करोड़ गुनाह है, एक तरफ एक नेकी है। उस नेकी को बुरा ना कहा जाए, बल्कि हो सकता है वही नेकी इसको तिरा दे, बख्शा जाइए। एक जालिम शख्स, बहुत बिगड़ा हुआ आदमी, गुनाहगार आदमी फौत हो गया, क्या हुआ? अल्लाह ने बड़ा करम किया। कैसे? तू तो ऐसा था। बोला वाकई में ऐसा ही था। बस एक बार मैं अपने घर में अपने तख्त पर बैठा था, गालिब किसी जालिम हकीम का वाकया गालिब नहीं, मैं अपने तख्त पर बैठा हुआ था, तो पड़ोस में से कोई बड़ी अच्छी आवाज में पढ़ रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुनते ही कि मेरे रब का नाम है, मैं एकदम फुर्ती से उतर के नीचे बैठ गया, जमीन पर तख्त से उतर गया, और बड़े अदब से मैं उसको सुनने लगा, और अल्लाह के नाम की मिठास मैंने अपने दिल में पाई। जब मैं दुनिया से चला गया, गुनाह तो बहुत थे, लेकिन मुझे कहा गया कि रब की मोहब्बत में जो तू नीचे उतरा था और तेरे दिल में जो उसकी कैफियत पैदा हुई थी, उसी वजह से तुम्हारी बख्शिश की जाती है। तो अल्लाह पाक नुक्ता नवाज है। अब अल्लाह बख्श दे, मुझे और आपको क्या मतलब इसमें कलाम है यार। तो नहीं, नेकी को नीचे ना करो। नेकी सारी दुनिया के गुनाहों पर भारी है। अल्लाह किसको किस तरह बख्श देगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े नेक बंदे बजाय होते हैं, एक छोटे गुनाह की वजह से पकड़े जाते हैं। नेकी का ताना ना दिया जाए, दाढ़ी रख के यूं करता है, नमाजी होकर यूं करता है, रोजे रख के यूं करता है, रमजान के महीने में यूं करता है, इबादत भी करता है, तरावी भी पढ़ता है, पहले सब में होता है, ऐसी हरकतें करता है, ये ताने ना दिए जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। Mir Ahl Sunnat. My question is that we often hear the phrase, speak to people according to their level. So we asked Amir Ahl Sunnat to please share some advice and guidance as to how one can recognize the audience that he's speaking to and how to deal with them. And also please share some guidance on this important matter. कहा जाता है कि कल्लिमिन नासा अला क़दरी उक़ूलिहिम, यानी लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। अमीर अहले सुन्नत से दरख्वास्त है कि अपनी ऑडियंस को पहचान कर इन्हें कैसे डील करें, इस हवाले से हम कुछ इरशाद फरमाते हैं। ये मजमून हदीस शरीफ का है और एक सहाबी का इरशाद भी इसी तरह का है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सेम, ये अल्फाज ना सही लेकिन मिलता जुलता मौजूद। नहीं, पिछले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो बातें हैं उनमें से एक ये भी हासिल है कि कल्लिमिन नासा अला क़दरी उक़ूलिहिम, यानी गुज़श्ता नबियों अलैहिमुस्सलाम का जो अंदाज था गुफ्तगू का, उससे भी ये यानी कि जाहिर होता है कि वो हजरत यानी कि कल्लिमिन नासा अला क़दरी उक़ूलिहिम, के लोगों से इनकी अक्लों के मुताबिक बात करो। इसलिए वो ये बहुत अच्छा उसूल, जोरदार उसूल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतवा रज़विया शरीफ में है कि कुछ लोग नए नए मुसलमान हुए थे, तो उनके सामने तसव्वुफ की गहरी बातें बाज़ों ने छेड़ी होंगी, तो आला हज़रत ने सवाल हुआ था कि ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको अकीदे सिखाओ, वुजू नमाज के तरीके सिखाओ। अभी तो आया है, इसको इतनी गहराई में ले जाओ तो कि जहाँ से आया तो वापस ना चला जाए कि साहब इस्लाम तो बहुत मुश्किल है, तसव्वुफ तो बहुत गहराई है ना उसमें। तो यूं कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक। अब एक केजी नर्सरी का स्टूडेंट है, अब उसके सामने आप मतलब यानी कि साइंसी उसूल बयान करना शुरू कर दो, कहाँ पल्ले पड़ेगा यार इसके।
एक अनपढ़ आदमी दो चार जमा है और आप पढ़े हुए हैं ना, अब उसके सामने अपनी फन खिताबत के जौहर दिखा रहे हैं और उम्दा उम्दा अल्फाज बोल रहे हैं, तो भले क्या पड़ेगा इसको। वो जैसे कि वो चुटकुला किताबों में लिखा है, एक वजीर आप पाशी मिनिस्टर वो गया खेतों के उसमें अपने दौरे पर, तो एक अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, वहां जाके तो किसानों का एक वफ्द अपने मसाइल लेकर वहां पहुंचा। सब तो अंदर जा नहीं सकते थे, एक को नुमाइंदा बनाकर भेजा कि तुम बोलो कि ये वफ्द हाजिर हुआ आपकी खिदमत में, टाइम चाहिए, खेतों के बारे में बात करनी है। तो वजीर ने सर उठाकर, तुम्हारी किश्ते ज़ार पर इमसाल तकातुरे अमतार हुआ या नहीं? अच्छा, अब जो अच्छी उर्दू समझते हो समझ गए कि ये मतलब क्या है इसका। वो तो घबरा गया, किसान तो था, हालांकि इसका मतलब ही होता था कि इमसाल मन इस साल, तुम्हारी किश्ते ज़ार, तुम्हारे खेत पर इस साल तकातुरे अमतार यानी बारिश हुई कि नहीं, ये बोलना था। तो उसने घुमा फिरा कर वजीर ने इंप्रेशन डालने के लिए बोला कि वो घबरा गया और जाकर उनको किसानों को बोलता है, वजीर साहब तिलावत कर रहे हैं, अभी बात नहीं करेंगे। मैं गया था तो तिलावत कर रहे थे, अब वो बेचारे ने तिलावत समझी। ये अवाम होती है। कुतुल कुलूब में बड़ा दिलचस्प, बल्कि यूं कहिए ईमान अफरोज वाकया लिखा है कि एक भोला भाला कोई आदमी था, सीधा साधा, तो वो कहीं से गुजरा तो कुछ अरब नौजवान थे, वो अरबी में आपस में गाली गलौज कर रहे थे। अब ये बेचारा अरबी तो समझ नहीं पड़ती थी इसको, तो इसलिए सुनने लगा, ये समझा कि ये जिक्र और अस्कार कर रहे हैं, अरब लोग हैं, ये गाली कैसे दे सकते, अरबी अरबी। तो उसने वो अल्फाज रट लिए, जहन में बिठा लिए, फिर ये इसको पढ़ने लगा। इसका हो गया इंतकाल। ख्वाब में किसी ने देखा तो बोला कि वो अरबी नौजवान जो बोल रहे थे ना, तो मैं इनको जिक्र अस्कार समझता था, मुझे पता नहीं था, तो मैं वो पढ़ता था, लेकिन मेरी खुलूस नीयत की वजह से अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत कर दी। जो अरबी का नहीं, अवाम को नहीं पता होता। मैं एक बार अपने पुलिस हारे से मेरे पास थे, पता नहीं क्या बात निकली, तो मैंने वो एक मुहावरा अरबी का बोला, अल इंसान हरीसुन अला मा मुनिआ, इंसान उस बात का हरीस है कि वो जिस चीज से उसको रोका जाए तो उसको करता है, जिस चीज से उसको रोका जाए तो वो करता है उसको। जैसे बच्चे होते रोको तो ज्यादा करेंगे, इस तरह की कोई मैंने बोला गया, आज कोई बातचीत निकली तो फिर मुझे एकदम एहसास हुआ कि यार ये बेचारा समझा तो होगा, मुश्किल है। तो मैंने उसको कहा कि देखो हाँ, ये आयत नहीं है, ये अरबी का एक सेंटेंस है, मुहावरा है। तो वो पुलिस वाले ने भोलपन में कहा बेचारे ने, मैं तो आयत समझा था, ये अपना वाक्य है। तो ये अवाम के सामने वो बात की है, इनके पल्ले पड़े। हम अपनी मतलब यानी कि सुखनदानी का मुजाहरा करेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं कि सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह रिवायत करते हैं हदीस पाक कि इन्ना माशिरल अंबियाई अन नुमरा अन नुकल्लिम अन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। इसका मतलब ये है कि हम गिरोहे अंबिया को इस बात का हुक्म दिया गया कि हम लोगों की अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करें। ये हदीस पाक के अल्फाज। सुभान अल्लाह। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं हमें मना किया गया है कि लोगों को उलझाते रहो। अरे हमें तो इनसे दर्स हासिल करना है, इनकी पैरवी करनी है, कि बात वही करनी है कि जो लोगों की समझ में। जैसे बयानात में मैं कोशिश करता हूँ जहाँ समझाना होता है तो वहाँ आसान अल्फाज करने की कोशिश करता रहता हूँ। अपनी तहरीर में भी कोशिश करता हूँ कि यार हमको मतलब अपनी वो मालूमात की धाक नहीं बिठानी, इनको मस्जिद में लाकर नमाजी बनाना है। नमाजी उसी सूरत में बनेंगे जब हम इनको ऐसी बात करेंगे जो इनके पल्ले पड़ेगी।
पल्ले नहीं पड़ेगी तो ये फिर बेचारा करेंगे क्या? हुजूर, इस रिवायत को जो अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया, इससे हमें इस उसूल की मज़ीद अहमियत क्या नहीं पता चलता कि हम ग्रोह अंबिया को ये बात कही गई है, और अंबिया आते हैं तबलीग के लिए और अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। यानी यहाँ पर ख़ास तौर पर हुजूर ये कहा जा सकता है कि ख़ास तौर पर जो नेकी की दावत देने वाले हैं, तबलीग करने वाले हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, इनको इस मामले में बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि ये कहाँ किससे कैसी बात इनको करनी है। वजह फरमाया, ये मुबल्लिगीन को भी चाहिए, मुक़र्रिज़ीन को भी चाहिए, वाइज़ीन को भी चाहिए। ऐसी मतलब डिफ़िकल्ट गुफ्तगू होती है आमतौर पे, समझे, नहीं वाकई आवाम को नहीं समझ आती। ये भले नारे लगाते हैं, नारे उतार चढ़ाव जो होता है ना बोलने का, वो मुक़र्रिर को जोश आया, समझे, तो नारा लगाने वाला जो शौकीन होता है उसको भी जोश आ जाता है, वो नारा लगाता है। इसको कोई पकड़ के पूछे ना, भाई तू समझा क्या, फिर पता चलेगा। एक किस्सा कभी कभी मैं बताता हूँ कि एक बार, यानी बहुत पुराना वाक़या है, एक इस्लामी भाई आते थे, रिक्शा चलाते थे, वो गाड़ी भी रखी हुई थी और थे अपने अंदर के, समझो यूँ आने जाने वालों में दाऊद इस्लामी के। ये चंद रोज के दिन गायब हो गए। खैर फिर मिले तो बोला कि फुला शहर में गया था, तो यूं था, और बड़ा वो किसी का जलसा और खिताब और ये वो बड़ी तारीफ है उसने की मेरे सामने, ये खिताब वो खिताब, और वो जो खिताब करने वाला था वो उसका अकीदा दुरुस्त नहीं था, मैं उसे वाकिफ था उससे। और ये बेचारा जोश में शोहरत सुनकर चला गया था दूसरे शहर जाकर उसमें। तो फिर वो जब ये तारीफ की, मैंने उसको पूछा कि ये बताओ आपको याद क्या रहा, कि उसका खिताब मैंने भी मुझे पता था, जो किस तरह करता है, पल्ले ना पड़े, मतलब दाड़ 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 जा रहा है क्या, नाक के सीध में दीवार आए तो ठा करके गिरे। तो वो मतलब ये बताओ कि आपको याद क्या रहा। अब उस बेचारे ने, मैं अपने अंदाज से सर को जाया, याद तो कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा आप क्या लेने दौड़े थे वहां, क्योंकि उसका अकीदा दुरुस्त नहीं था। अकीदा दुरुस्त होता तो ये जुमले ना बोलता। आप क्या दौड़े थे लेने के लिए वहां, या वो कुछ नहीं याद रहा, इतना खर्चा किया, ना वक्त बर्बाद किया, और जैसे कहते वैसे लौट कर आ गए। इधर आपको जो सुन्नतें सीखने को मिलती हैं, दुआएं याद करने को मिलती हैं, दिल में खौफ खुदा पैदा होता है, इश्क़ रसूल पैदा होता है, ऐसा मद भरा शहद से मीठा माहौल छोड़कर वहाँ गए क्या दे लेने के लिए। ये आप सबको समझा रहा हूँ। दावत इस्लामी को छोड़ के कहीं नहीं जाने का इंशाअल्लाह। इस दावत इस्लामी हमें वाया मदीना जन्नत पहुँचा देगी आका के कदमों में इंशाअल्लाह। इधर उधर गए तो फिर मुझे बोलना नहीं, पता नहीं था, है बड़ा मतलब बहुत नाजुक दौर है, पहचान नहीं होती कि ये जिसको हम जिसके बाद जा रहे हैं वो है क्या, बाज़ औक़ात पहचान नहीं होती। लिबास खिज़्र में यहाँ सैकड़ों रहसन भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर एक पहचान सकता नहीं है, इसलिए कहीं जाना नहीं है जब तक यकीनी मालूमात ना हो। अब यकीनी मालूमात का भी क्या कहिए यार, अपने तौर पर यकीन हो गया कि हाँ दुरुस्त है, बाज़ों का दुरुस्त नहीं होता वो। तो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, तो इसको छोड़कर आप भले दुनिया में कहीं भी रहे, अब दावत इस्लामी के साथ मरबूत रहे, इंशाअल्लाह आपके अकीदे को, ईमान को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, अमल भी दुरुस्त रहेगा इंशाअल्लाह। सही बुखारी शरीफ में सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का फरमान है, हद्दिसुन नासा बिमा यारिफून, यानी लोगों के सामने वो बातें बयान करो जो वो जानते यानी समझते हो, यानी उनकी समझ के मुताबिक जो उनमें मारूफ बातें हैं वो बयान करो। हल अतुहिब्बून अन युनकरल्लाहु व रसूलुहु, क्या तुम ये बात पसंद करते हो कि लोग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार कर दें, यानी उनके समझ में ना आए, अकल के अंदर ना आए और फिर वो इसका इनकार कर बैठे। तो ऐसी बातें भी बयान करना कि जो लोगों की अकलों से
ऊंची हो, वरा हो, तो वो बयान करने से भी हर एक के सामने बयान मना किया गया है। खासा दिगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, फिर आगे के मिसरान उस पर आदमी को गलत फहमी हो सकती है, जो बोलते हुए डर लगता है दुरुस्त तो मिसरा। फतह रज़विया शरीफ जिल्द 15 में है, हदीस पाक में, लोगों से वही बयान करो जो इनके लिए मारूफ है। मारूफ यानी इनके इस्लाह का समय ये वही हदीस है जो मैंने अर्ज की ना। अच्छा, हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून, हदीस से मुराद यहाँ सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है। यारिफून की तशरीह हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई यफ़क़हून, यानी वो बातें इनके सामने बयान करो जो वो समझ सके। एक और हदीस पाक में, जब कोई किसी कौम को ऐसी बात बयान करेगा जहां तक इनकी अक्ल की रिसाई नहीं, यानी जो इनकी अक्ल में नहीं आती, तो वो इनमें फितने का सबब बनेगा। हवाला सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 पेज नंबर 9। सुभान अल्लाह, ये कितनी अहम बात है कि जो किसी कौम में ऐसी बात बयान करेगा जहां तक इनकी अक्ल की रिसाई नहीं, अक्ल में नहीं आएगी उसके, तो ये इनमें फितने का सबब बनेगा। इसकी मुराद ये है कि लोगों से इनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो जिसे वो समझ सकें। ये हवाला उम्दतुल कारी, इसकी शरह इस हदीस पाक की। तो ये सब मुबल्लिगीन, मुक़र्रिरीन, वाइज़ीन, मुहर्रिरीन, मुसन्निफीन, मुअल्लिफीन, ये सबके लिए इसमें मदनी फूल है। फफ़हम, बस समझो और गौर करो। अब मैं अच्छी उर्दू नहीं बोलूं, मैं अपने अल्फाज का जो ज़ख़ीरा उसको डिक्लेयर नहीं करूं, तो यार फिर मेरा इम्प्रेशन क्या पड़ेगा। ये जहन में जो खब्त समा जाता है ना, फिर आदमी खुद भी डूबता है, दूसरों को ले डूबता है। इसका बहुत ज़्यादा तजर्बा उस वक्त होता है जब मुबल्लिगीन मुख्तलिफ काफ़िलों में सफ़र करते हैं ना। अब जैसे कि अफ्रीका जाएं, अफ्रीका के भी कई ममालिक में जाएं, और ख़ास तौर पर जब न्यू मुस्लिम से मुलाकात होती है और जब न्यू मुस्लिम के साथ बात होती है, तो वहाँ पर उनसे गुफ्तगू के ताल्लुक से और इनकी जो मेंटली अप्रोच होती है उसके ताल्लुक से, इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनके साथ बैठना होता है, उनकी जो गुफ्तगू होती है, जो सिडनी में मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बैठा था, उनकी बातें, तो वाकई आप जो इस वक्त जो फरमा रहे हैं ना कि किससे कितनी लेवल पर बात करनी है। अगर अच्छा, इसमें भी मैं ये दरख्वास्त करूँ मुबल्लिगीन को भी, और हुज़ूर इस पर आप अगर थोड़ी सी वजाहत कर दें, सोहबत बहुत ज़रूरी है हुज़ूर। अभी जैसा हम कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं, तो हमें लगेगा हाँ मैं तो एहतियात के साथ बात करूँगा, लेकिन वो जहाँ बात करेगा उसको ये नहीं पता कि एहतियात की अलिफ क्या होती है, वो समझेगा मैंने एहतियात की है। तो जब तक कि किसी माहिर, काबिल और इस तरह की हिकमत और मसलियत समझने वाली कोई आला शख्सियत के साथ उसने वक्त ना गुजारा हो, सोबत ना उठाई हो ना, बाज़ औक़ात उसको इतनी ज़्यादा समझ आती नहीं है। तो मैं नाजरीन और हाजरीन सबसे एक दरख्वास्त करूँगा, मैं अभी मेरे जहन में जो बात है वो कहता हूँ आपको, मैं दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ मदनी मुज़ाकरा इस अंदाज से देखा सुना करें। जो सवालात आते हैं, फिर जिस तरह बच्चे सवाल कर रहे हैं, बड़े सवाल कर रहे हैं, बातों का सवाल से पता चलता था इंटेलेक्चुअल किस्म का पर्सन है, आम आदमी है, कौन है, उसकी गुफ्तगू की जो उतार चढ़ाव वो बता देता है कि ये इसकी क्या पोजीशन होगी, उसके मुताबिक जवाब। बुजुर्ग हमारे सवाल करते हैं, ये चीज़ सीखने, यानी एक तो सीख रहा हूँ, लेकिन ये भी सीखने के लिए एक टॉपिक है मदनी मुज़ाकरे में। अल्लाह पाक तौफीक दे दो इंशाअल्लाह, इससे क्योंकि सोबत या मिल रही है हमको, माशाल्लाह मुफ्ती साहब से बात होती है, दीगर यहाँ सारा वो सवाल जवाब का सिलसिला होता है। मैं तमाम से ये अर्ज़ करूँगा कि ये देखना और समझने से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सरकार आला-हज़रत एक मकाम पर फतवा रज़विया में फरमाते हैं, हर जगह के लिए एक मुनासिब गुफ्तगू है और हर गुफ्तगू के लायक कुछ ख़ास मर्द हैं और हर मर्द के लिए कुछ कहने की गुंजाइश है और हर गुंजाइश के लिए एक अंजाम है। लिहाजा हम अल्लाह ताला से अच्छा अंजाम चाहते हैं क्योंकि उसी के पास हर हाल का हकीकी इल्म है।
हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। खैर ये शेर फतवा रिजवा का नहीं है, ये अलग से। अब बड़ा मुश्किल मामला ये है कि बाज़ औक़ात आसान अल्फाज मिलते नहीं है। अब जैसे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, हर एक को तो तर्जमे की इजाजत है ही नहीं इसमें। तर्जमा तो किसी जो आलिम है, इसका अहल है, उसके तर्जमे को मिन नौअन बयान करना है, यानी मिन नौअन भी मुश्किल लफ्ज़ है, जैसा है समझे वैसा बयान करना है। अब उसमें अल्फाज जो भी है, अब उसकी तफसील करने बैठे हैं, तफसील माने आसान करना, तो अगर उसकी तफसील के लिए बैठे ये तो कुछ का कुछ कर डालेगा। तो इसमें हदीस पाक में जो तर्जमा है उलमा का वही बयान करें, इसमें अवाम की हमदर्दी के बजाय अपनी आखिरत की हमदर्दी मुकद्दम ऊपर रखें, अपनी नहीं। कुरान करीम के जो तर्जमे लिखे हैं, कंजुल ईमान है, कंजुल इरफान है वगैरह, तो ये वही तर्जमा बोलना है, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे करने से बाज़ औक़ात कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे आप। ये भी इसमें भी कोई होशियारी नहीं करनी। इसी तरह तफसीर है, तशरीह है, शुरुआत है हदीसों की, उसमें भी अपनी तरफ से चूंकि चुनाचे हम आवाम को नहीं करने का, ये भी ज़हन में रखिएगा। फिर ये कि हर फर्द के लिए उसकी ज़बान में आसान से आसान बोलना ये मुमकिन भी नहीं है। अरे कि मतलब अब जो उर्दू नहीं समझता उसको आप अपनी उर्दू में आसान से आसान भी कर दो, उसने पल्ले ही नहीं पढ़नी उसको। और भारी तादाद दुनिया में दावत इस्लामी में आपको मिलेगी जो उर्दू नहीं जानते। अब जैसे इंडोनेशिया तो कहाँ उर्दू जानते, आते तो ही उर्दू नहीं जानते। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के, अच्छा बाहर जो पाकिस्तानी बसते हैं, जो लोग पाकिस्तानी जो पलकर बड़े वहाँ हुए वो उर्दू का जानते हैं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं, और इनके बच्चे घर में इंग्लिश बोल रहे होते हैं ये लोग, या मकामी जबान बोलते होंगे, उर्दू इतनी नहीं समझ पड़ती। हमारे हाजी अमीन की एक जगह दावत थी, हमारे रुकन शूरा, तो वो पाकिस्तान के बाहर, तो उन्होंने दावत की, तो थे तो हमारे काफ़ी दावत इस्लाम से वाबस्ता कराना था, तो दावत हुई तो इन्होंने कहा होगा आपने बड़ी पुरतकल्लुफ दावत की, तो अगले कहने हाँ आएंगे तकलीफ थी भी, यानी आपको तकलीफ हुई है? तो बोले तकलीफ नहीं हुई है, मैं पुरतकल्लुफ बोल रहा हूँ। अब पुरतकल्लुफ समझाना पड़ा ना कि पुरतकल्लुफ होता क्या है। अब समझाना भी मुश्किल हो गया होगा। हाँ, उसमें ज्यादा तकलीफ हो सकती थी। मैंने बहुत पुराना वाकया है, एक मेमन घराना कराची का, वहाँ मतलब तो वो एक बाबे काबा, दरवाजा काबा शरीफ, इसका बहुत बड़ा फ्रेम लगा हुआ था क्या, तो वहाँ एक बच्चा था, तो उसको मैंने पूछा कि ये क्या है, तो बोला अल्लाह हाउस का डोर। समझ तो तकरीबन गए होंगे जो थोड़ा बहुत उर्दू इंग्लिश समझते। अल्लाह हाउस का डोर यानी वो कहना चाहता था कि बाबे काबा है, काबे का दरवाजा है, उसको ये नहीं बोलना आता था, तो उसने अपने हिसाब से काबा अल्लाह का घर है, वो बैतुल्लाह, तो बैतुल्लाह का दरवाजा, दरवाजा बोलना नहीं आता था, डोर बोल दिया उसने, मर्जी है इसकी। अब इनको अब क्या समझाओगे यार ऐसी उर्दू बोलने वालों को। अब तो ये बच्चा जवान हो गया, मुलाकात हुई है इससे, तो यादगार है उसकी। अपने अहले मोहब्बत है, खानदान न बल्कि अत्ताही है। अब ये बच्चे का तो याद नहीं है मुझे, लेकिन खानदान अपना ही है समझो। लेकिन अब वहां रहते हैं तो उर्दू दुनिया में जो है ना ये है, बल्कि अब यहाँ भी मजलूम होती जा रही है। लोग उर्दू इतना, न्यू जनरेशन जो है ना, ये 1 2 3 में नहीं बोलते, 1 2 3 बोलते हैं। ओके बोलेंगे, इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे। कल लब्बैक की किसी ने बात की थी, अब यहाँ की थी, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में, यही खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि ये क्या मतलब हर बात में लब्बैक बोलते हैं, इंशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए इस तरह की।
मैं तो बड़ा खुश हुआ, मेरा भी, मैं कभी कभी इंफरादी तौर पर समझाया भी है कि यार यहाँ लब्बैक की तुक नहीं है, कल आ जाना लब्बैक। ये तुम समझते हो मैंने कोई इबादत की, सवाब का काम किया? अरे भाई सुन्नत है इंशाअल्लाह कहना आइंदा के लिए। तो कल आ जाऊंगा, कल आ जाना, तो यहाँ कहना चाहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल करीम। यहाँ लब्बैक कहने का महल नहीं है। तो इसे मैंने कई जगह नोट किया, ये सोती पैगाम आते इसमें लब्बैक ही बोलते हैं, दिखते हैं, मतलब लब्बैक वो बना के रखा होगा आपने, वो जो उसमें टच कर लेते होंगे लाम को, तो वो लब्बैक उभर आता होगा सामने, भेज देते होंगे। तो इंशाअल्लाह लिखो ना यार। ऐसी कई बातें जहाँ इंशाअल्लाह कहना होता है। लब्बैक का माना होता है हाजिर हूं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलाते, तो ये सहाबा किराम के ये अल्फाज हैं हदीसों में कि वो लब्बैक अर्ज करते थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, कल आ जाना तो लब्बैक, फिर यहाँ इंशाअल्लाह कहना है, वो चीज ले आना इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिटी से गुलशन मेमार डिस्ट्रिक्ट सोराबकोट टाउन, गुलशन मेमार टाउन, न्यू कराची टाउन और फैज़ान मुर्शिद शोबा मदनी चैनल आम करें, शोबा राब्ता बराए वकला और शोबा मुआवनत बराए इस्लामी बहनें, इनके भी इस्लामी भाई हाजिर हैं। इसी तरह कई मकामात पर हमारे मरकज़ी जामिअतुल मदीना सखर, सियालकोट, लाला मूसा, जौटान लाहौर, सराय आलमगीर, जामशोरो, खानपुर गुजरात, सादिकाबाद में जामिअतुल मदीना के तलबा और स्टाफ के इस्लामी भाई शामिल हैं। तलवंडी, भंडरा, नारोवाल, अचरा, लाहौर पंजाब, फैज़ान मदीना फैसलाबाद, ये भी लाइव हमारे साथ हाजिर होने की इतला है। और मदनी चैनल आलमी मदनी मरकज में कई शहरों से आशिकान रसूल भी हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह। हमजा इंतजार कर करके थक नहीं गया होगा? जी बस आप, इसका टाइम 11 बजे होता है। जी आज लेट हो गए। सिर्फ अर्ज ये कि तौबा भी करा दें और जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें मुरीद होना चाहते हैं तो उनको मुरीद भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, है अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। मैं से ले तू ना खुद पैदा जाना। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है जिसमें शिरकत करना बहुत बड़ी सआदत है। इस मुबारक महफिल में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। पैदा जाना, पैदा जाना। बेटा
اسلامی بہنوں کی محفل گھر کے اندر رکھی ہے. لان میں تو صرف اسلامی بھائیوں کے لیے اہتمام ہے. ابھی تو اتنے کم لوگ آئے ہیں، محفل ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اسکول اور پلے ایریا اور دوسرے کاموں پر تو وقت پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اتنی مبارک میلاد کی محفل میں لوگ دیر ہی سے آتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم وقت پر شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہاں میں آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتاتا چلوں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا وہ عظیم الشان کلام ہے جس میں آپ نے 4 زبانوں کا استعمال کیا ہے. کون سی 4 زبانیں؟ ہندی، فارسی، عربی اور اردو زبانوں کا استعمال کیا گیا ہے. عربی، فارسی ہمیں تو صرف اردو سمجھ آتی ہے. یہ عاشق رسول کا کلام ہے، آپ سن کر جھوم اٹھیں گے.
دادا جان، محفل میں بہت مزہ آیا. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. دادا جان، مجھے بھی نعت پڑھنے میں بہت مزہ آیا. دادا جان، آپ نے مجھے مائک کیوں نہیں دیا؟ میں آپ سے نہیں بولتی. بیٹا فاطمہ، اسلامی بہنوں کی اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی غیر مرد سن سکے. اسی لیے ہم نے اسلامی بہنوں کی محفل کا اہتمام گھر کے اندر کیا تھا. دادا جان، میلاد پڑھنے والی باجی تو مائک پر ہی نعتیں پڑھتی ہیں. دادا جان، پوری سوسائٹی میں آواز گونج رہی ہوتی ہے. کیا وہ غلط کرتی ہیں؟ کیا انہیں اس انداز سے نعت پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت فاطمہ بیٹی کے اس سوال کے بارے میں؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا خط ہے اور بڑی پیاری نعت پڑھی حمزہ نے، مزہ آ گیا. صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا. محفل میلاد تھی. اب اس میں سوال جو کیا گیا نا، اب اس میں یہ ہے تھوڑا بہت عام ہے. یہ ہو رہی ہیں مائکوں پر عورتوں کی محفلیں وغیرہ. البتہ ہمارے دعوت اسلامی میں یہ تحفظات ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے. مسئلہ بھی یہی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. گفتگو عورت کسی مرد سے کرے تو اس کا بھی قرآن شریف میں یہ تذکرہ ہے کہ ایسی لوچدار نرم لہجہ نہ ہو جس سے من کا روگی للچائے. جس کا ذہن خراب ہو تو وہ مرد جو اس پر لالچ کرے، اس پہ جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھتے تو ہوں گے سب. یہ تو جو راگ ہوتا ہے، ترنم ہوتا ہے، تو اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. مرد اس میں مائل ہوگا. عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی گھر کی چار دیواری میں کبھی غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے، اس طرح پڑھیں. اسے کمرے میں بھی نہیں کہ بالکونی ہے، لوگ گلی میں آتے جاتے سن رہے ہیں. اندر کا کوئی کمرہ ہو، ساؤنڈ پروف کمرہ جس کو کہہ سکیں آپ، باہر آواز نہ جائے، تو وہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے پیارے نواسے، ان کا آج یوم امام حسن مجتبی ہے. مدنی چینل پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. حضور ان کے تعلق سے اگر کچھ فضائل اور خوب بیان آج ہو جائے تو. شب عرس ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نواسہ مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی آدمی نہ تھا. حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 547 حدیث نمبر 3752. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے یہاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواس رسول ہیں، صحابی نبی ہیں، اور
शहीद करबला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाईजान है। भाईजान आमतौर पे जो बड़ा भाई होता है उसको भाईजान बोलते हैं, छोटा भाई होता है उसके लिए भाईजान का लफ्ज, लुगतन बात करता हूँ कि इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होती, भाईजान बड़ा भाई। तो ये भाईजान थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई थे। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उन खुश नसीबों में शामिल है जिन्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बे अबी व उम्मी, यानी तुम पर मेरे माँ बाप फिदा। अपने नवासे पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत फरमाते थे, कितनी मोहब्बत का ये लफ्ज है कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हवाला मौजम कबीर जिल्द 3 सफ़ा 65 हदीस नंबर 2677। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु जो ही वुजू करके फारिग होते तो आपका रंग बदल जाता। इसकी वजह पूछने पर फरमाया जो शख्स मालिक अर्श यानी अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी का इरादा करे तो हक यही है कि उसका रंग मुतगय्यर हो जाए, यानी तब्दील हो जाए। खौफ खुदा की वजह से आपका रंग बदल जाता था कि अब उस बारगाह आली में मैं पेश होने लगा हूं अल्लाह की जनाब में नमाज पढ़ने के लिए। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह तआला अन्हु हर रात सूरह कहफ की तिलावत फरमाया करते थे, जो कि एक तख्ती पर लिखी हुई थी। हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह कहफ की अव्वल व आखिर से तिलावत करेगा उसके सर पर उसके सरतापा नूरी नूर होगा। यानी जो पूरी सूरह कहफ अव्वल और आखिर से, तो ये पूरी सूरत मुराद होनी चाहिए। अब अल्फाज ये कि सूरह कहफ की अव्वल व आखिर से तिलावत करेगा, उसके सर पर उसके सरतापा नूर ही नूर होगा। और जो इसकी मुकम्मल तिलावत करेगा, मुकम्मल का भाग जिक्र आया, और इसकी मुकम्मल तिलावत करेगा कंप्लीट, तो उसके लिए आसमान और जमीन के दरमियान नूर होगा। शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जन्नती ज़ेवर में सूरह कहफ के खवास खुसूसियात बयान करते हुए फरमाते हैं इस सूरत मुबारका को हमेशा पढ़ने वाला बरसो जुज़ाम और बला यानी आफत खुसूसन दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। आपकी सखावत भी हुजूर बहुत मशहूर थी। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुना है कि कई मरतबा इन्होंने अपना पूरा माल राह खुदा में खर्च किया। हुजूर ये सखी तो ये घराने सखी था, घराना सखी। सैयदुल असखिया राकिब दोश मुस्तफ़ा। असखिया सखी की जमा है, सखियों के सरदार थे। नवाजरे के वाकयात हैं। राय खुदा में 4 मरतबा सारे का सारा घर जो था वो लुटा दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हसन है। मेरा नाम हसन रजा है। मेरा नाम हसन है। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मेरा नाम हसन है। मेरा नाम हसन है। मेरा नाम हसन है। माशाअल्लाह। आज की रात की निस्बत से 5 हसन तो हमारे यहाँ बहुत सारे हसन नाम के, हसन रजा, अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पास भी एक हसन रजा है। ज़माने आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i rabbil arshil azim, la ilaha illallah al-halimul kareem, subhanallah rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim, la ilaha illallah al-halimul kareem, subhanallah rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim, sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad। रबीउल अव्वल आ चुका है। इस खुशी के मौके पर कुछ लोगों को कुछ एतराज़ात होते हैं। एतराज़ात करने वालों में से एक मेरे साथ भी नौमान भाई। मुझे एतराज़ भी है, कंफ्यूजन भी है और पेट में भी दर्द है। तो एतराज़ क्या है आपको? इतनी लाइट्स वगैरह हुई हुई है, इतना हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है ना। यही मेरा पहला एतराज़ ये है कि आप किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें, राशन डलवा दें, ठीक है ना, या किसी बहन की, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतना लाख रुपए खर्चा करवाया लाइट्स वगैरह में। अच्छा, गरीब की बेटी की शादी की बात कर रहे हैं। आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई। अच्छा, आपने वलीमा किया था? मैंने वलीमा किया था। कितने लोग थे? मेरे वलीमे लगभग 100-150 लोग होंगे। 100 या 150? तकरीबन 100-150 के करीब लोग होंगे। तो 150 लोग आप है ना 20-25 लोगों से साथ भी वलीमा कर सकते थे। ससुराल वाले बुलाते, अपने घर वाले बुलाते, वलीमा कर देते, सुन्नत भी अदा हो जाती, वलीमा हो जाता। 100-150 लोग क्यों किए? उसमें आपको है ना 100-150 के पैसे बचा के किसी गरीब की मदद करने का याद नहीं आया? मैं बताऊँ ना आपको, वलीमे में ये है ना कि अगर मैंने 100-150 लोग बुलाए ना तो मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं। मेरे पास लिफाफे में पैसे आ रहे हैं, मेरे पास लिफाफे में पैसे आ रहे हैं ना। अगर मैं वलीमा कर रहा हूँ, अगर मैंने उसमें 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए तो मेरे पास पीछे से बैकअप में पैसा भी तो आ रहा है ना। रबीउल अव्वल का तो आपने चले ये इसका रिप्लाई मुझे मिल जाएगा भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 11वीं आ रही है, 11वीं शरीफ आ रही है, ठीक है। आला हजरत का महीना होता है, उसमें इतनी लाइटिंग वगैरह, उसमें झंडे लगाना और इतने लोगों को बुलाना, उनका लंगर वगैरह। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें करवा दो, आप किसी के घर में राशन डलवा दो, कोई दूसरे सवाब के काम कर लो भाई। रबीउल अव्वल में आपको है ना गरीब की शादी याद आ गई। अच्छा शहजाद भाई, आप बताएं हम लोगों को रबीउल अव्वल का जवाब दें, 11वीं का जवाब दें, आला हजरत का जवाब दें, किस चीज़ का जवाब दें? वैसे आप क्या जवाब देने के पाबंद हैं किसी को? शहजाद भाई बिल्कुल, जब कोई अगर मुझसे पूछेगा और मुझे अगर इसका रिप्लाई नहीं आएगा, ये कोई मेरे को नहीं पता चलेगी कोई चीज, और मैं बिल्कुल पाबंद होऊंगा, उनको बताऊंगा कि भाई ये चीज। पाबंद क्यों होंगे? आपको जवाब नहीं आता, बोले मुझे नहीं मालूम। नहीं ना शहजाद भाई, जाहिर है मुझे जवाब नहीं आता तो मैं आगे अगले बंदे को जवाब तो दूंगा ना कि हाँ भाई ये डिटेल है, ये चीजें। आप क्या समझे, ये सवाब का काम नहीं है? कौन सा? ये जो चरागा करना, झंडे लगाना, लंगर खिलाना, उसके साथ साथ वो भी काम जरूरी है ना। वो दुआएं कितनी देगा, आप किसी के घर में राशन डलवाएंगे, कितनी दुआएं मिलेंगी उसकी आपको, है ना। मुझे एक चीज बताना, ये भी सच सच बताना, 2-2.5 लाख के अलावा क्या शादी नहीं हो सकती थी? यस और नो? और नहीं बेस नहीं, यस और नो? बिल्कुल हो सकती थी। हो सकती थी जी, बिल्कुल हो सकती थी बिल्कुल। तो फिर आपने है ना 2-2.5 लाख क्यों खर्च किए? ये इसराफ नहीं है? मैंने आपको बताया तकरीबन 2-2.5 साल पहले लगा लें 20,000-25,000 रुपए दिया होगा। तो आप है ना ये घर में कमरे में ही कर लेते? वो तो शहजाद भाई उसको छोड़े ना। मैं क्यों छोड़ो? अच्छा, अपने बारे में छोड़ो, हमारे पे एतराज़ात करेंगे। शेख, आपने इनकी बातें सुनी, नौमान भाई की, बहुत सारे एतराज़ात किए और दर्द का भी बताया, सर का दर्द का, पेट का दर्द का, अल्लाह आसानी फरमाए इनके लिए। लेकिन इलाज तो और जवाबात तो आप ही देंगे। तो प्लीज़ शेख
بتائیے کون صحیح کون غلط؟ پہلے تو مجھے اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے. وہ کس طرح کا درد ہے یہ نہیں بتایا انہوں نے. اس سے توبہ کریں. کیونکہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں درد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غوث پاک سے خوش نہیں ہے یہ آدمی وغیرہ وغیرہ. اس میں بات صورتوں میں دور جاتی ہے. اس لیے سے توبہ سے مراد میں کوئی گناہ یا کبیرہ یا صغیرہ ہی نہیں. اب یہ ہے اچھی بات نہیں ہے. جب بحث کرے تو کوئی بولے ٹھیک ہے میں غیر مسلم ہوں اور یہ مسلمان کی نمائندگی، تو یہ غیر مسلم کہنے والا ہو جائے گا غیر مسلم کہ میں غیر مسلم ہوں. کہا تو یہ ہو گیا. تو یہ نازک ہوتا ہے. تو یہ چونکہ خاکہ ہے اور یہ جو بھی ہے یہ خود چراغاں والے ہی انڈرسٹوڈ ہوں گے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو وہ برائی کی طرف اس طرح لے نہ جائیں کہ میں معاذ اللہ پیٹ کے درد والا ہوں. پیٹ کے درد میں جن کو بولتا ہوں بدعقیدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بولتا ہوں اس کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. جیسے میرے خلاف کسی نے کہا تو مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف میں نے نہ کسی کی جائیداد دبائی، کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کسی کے پیسے کھا گیا میں، کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا، سمجھے، انشاءاللہ الکریم. لیکن یہ کیا گڑ گڑ کے میرے بارے میں جیسے کوئی کہے گا تو کیا کہا جائے اس کے پیٹ میں درد کچھ اور ہے، یعنی یہ مجھ سے سیٹ ہی نہیں ہے. اب مجھ سے سیٹ نہیں ہے تو میں تو نہ جان نہ پہچان، میرے عقیدے سے یہ سیٹ نہیں ہے. جا کر بات تو یہاں کر. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں. بس نہیں توبہ توبہ ایسی بات نہیں کرو یار. تو توبہ توبہ ایسی بات نہیں کرو کہ میرے پیٹ میں درد ہے. میرے پیٹ میں الحمدللہ کوئی درد نہیں ہے. میری تو آقا پر آنکھیں بند، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھیں بند نہیں ہوں گی تو کس پر ہوں گی؟ الحمدللہ. خیر اب رہی کہ چراغاں پر خرچہ تو یہ تو اس کے جواب تو میں دیتا ہی رہتا ہوں. کل بھی تفصیل لیا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ جشن ولادت کے چراغاں پر کیوں غریب یاد آتے ہیں، یتیم بیوائیں یاد آتی ہے. 14 اگست پر جو کروڑوں روپے کا چراغاں ہوا پاکستان میں، کتنا چراغاں ہوا، کسی کی مجالے جو بول جائے پولیس کی ہتھکڑیاں نظر آتی ہوں گی نا، بلکہ ذہن میں بھی نہیں آتا ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کے تعلق سے پیٹ میں درد نہیں ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے. یہ چراغاں ہے اس کے بارے میں پیٹ میں درد ہے. یار کیا تک ہے یار. تو یہ کہ یوں چراغاں تو لوگ اپنے شادیوں پہ کرتے ہیں، عقیقہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں، ختنہ بچے کا ہوتا ہے تو کرتے ہیں، خوشی کا حج پہ جاتے ہیں تو چراغیں کرتے ہیں اور لاکھوں لاکھ روپے کے تحفے بانٹتے ہیں. تو یعنی کہ ہر صورت میں مطلب خرچے ہوتے ہیں. قربانی پر کتنے خرچے ہوتے ہیں، خود حج پر اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہر سال. تو یہ نہیں، یہ سب کے لیے کون بولتا ہے غریبوں کو دے دو. خالی جشن ولادت کا چراغ کو کیوں بولتے کہ دے دو. 5 لاکھ کا موبائل ہے آپ کے پاس، ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، 50,000 والا لے لو، 4.5 لاکھ دو کسی غریب کو، بھلا ہو جائے گا. مالداروں کے یہاں گیریج میں کئی کئی کاریں کھڑی ہوتی ہے. ہاں کئی کئی کاریں کھڑی ہوتی ہے. بنگلہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے باہر کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو بارادری میں کئی کئی کاریں کھڑی ہم نے دیکھی ہیں. اب اعتراض ہو رہا ہے چراغاں پر تو غریب یاد آ رہے ہیں. تو یار یہ جو کروڑوں روپے کی کاریں کھڑی کر دی ہیں یہ خامہ خواہ مطلب ہے نا کہ پڑی ہیں دھول چڑھتی ہے. نکالو نا یار، کسی غریب کے قدموں میں ڈال دو نا یار، بیچ کے زندگی بھر دعائیں دے گا یار. روزی روزگار پہ کسی کو لگا دو جو بیچارہ بے روزگار ہے. تو یعنی خالی مطلب چراغاں ہی غریبوں کو دے دو. چراغاں پر ہر ایک اتنا خرچہ نہیں کر رہا، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے. دوبارہ اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے. کسی کام کو غلط کہنے کے لیے، ناجائز کہنے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے، ورنہ خرچے تو بہت سے ہوتے ہیں. غلاف کعبہ پر کروڑوں اربوں روپے کا غلاف کعبہ ہوتا ہے، سونے کے تار سے یہ اس میں کڑھائی ہوتی ہے، سارا سال اس پہ کام ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. مسجد نبوی شریف میں بہت مطلب قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں. بعض سونے کی بھی ہوں گی اس میں جو لٹک رہے ہیں جھومر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارس پر انوار کے جعلی مبارک سنہری کے اندر بہت سارا سونا بادشاہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کوئی نہیں بولتا کہ غریبوں کو دے دو.
यानी मतलब खाली ये चरागाह ही क्यों, इसलिए चरागाह पर भी एतराज ना कीजिए। खुशी के इजहार के लिए मुसलमानों का तरीका है चरागाह करने का। शादियों में उसमें करते हैं, मैयत में कोई चरागाह नहीं करता, शादी में करते हैं लोग, समझे। तो इसलिए वो एक लोगों में राइज है। तो जो चीज लोगों में राइज हो और शरीयत उसको मना न करती हो तो उसकी मुखालफत अपना इमेज खराब करने वाली बात है। अपने इमेज खराब ना करें, आपको नहीं जमता खामोश रहे, जो करते हैं इनको करने दें। कि हुक्म शरीयत उसमें हुक्म लगता नहीं है, कोई चरागाह करता है उस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नुमान भाई ने बताया नहीं कि वो वलीमे की जो रकम रिटर्न हुई थी इनको, उसकी इन्होंने क्या किया, गरीबों की मदद की, किसी की शादी तो ये देख रहे अच्छे खुश, भाई ये पेट का दर्द का क्या हुआ, अब तो ठीक हो गया, था ही नहीं, बोलो था ही नहीं, था ही नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह भाई था ही नहीं। तो वो 1.5 लाख 2 लाख की शादियां होती होंगी कभी, अब तो भाई जो शादियों में खर्चे होते हैं खुदा की पनाह, गरीब बेटियां बैठी हुई हैं वाकई खर्चों की वजह से, इतने खर्चे कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ कोई मुहिम चलाए ना, गरीबों की बेटियों का शादियों का खर्चा कम हो जाए। समाजी इदारे चलाते हैं मूवमेंट, लेकिन बाद वक्त समाजी इदारे का जो बड़ा होता है ना, या मेन आदमी होता है, उसके यहाँ शादी होती है ना, हट जाओ, तो फिर इसका इंप्रेशन खराब पड़ जाता है, यार खुद तो ये कर रहा है, हमको बोलता है खर्चा कम करो, जैज सादा दो वगैरह वगैरह। तो बचना इस वो भी बेचारा मजबूर होता होगा, खानदान वाला नोच डालेगा अगर कुछ नहीं किया तो इसने। और ऐसा है भी तो नहीं ना कि जो चरागाह करते हैं वो गरीबों की मदद ना करें। नहीं करते, ऐसा थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह, यार हम लोग चरागाह करते हैं, FGRF जैसे दुनिया में मुसलमानों की तंजीम बता दें, जो दुनिया के इतने मुल्कों में गरीबों की खिदमत करते हो, तो मेरे को नाम दे दें, है कोई नाम, पैगाम दे हमको कि फुला तंजीम जो है वो ज्यादा खिदमत कर रही है मुसलमानों की तंजीम। हम मुसलमानों से बात करेंगे जो लोगों की ज्यादा खिदमत करती है। यार ये तंजीम आपकी दावत इस्लामी फलस्तीन जाके बैठ गई यार, और वहाँ दुखियारे भाइयों की आपके जो अरबी जानते उर्दू नहीं जानते, उनकी खिदमत कर रही कि नहीं कर रही। बांग्लादेश में सैलाब आएगा तो ये वहां जाके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पर जहां भी कोई आफत आती है, मुसीबत आती है, पहुंच जाते हैं। आग लगती है तो पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग जमीन पर आ जाती है तो ये दावत समय वाले जाके बैठ जाते हैं, इनको बचाने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए। सैलाब में कितना खाली खिलाया नहीं, दूसरी भी NGOs ने जिन्होंने काम किया ठीक है, जो भी इखलास के साथ करे सबको सलाम है, सबका अल्लाह कबूल करे, लेकिन करके फिर चले जाते हैं ना। वो दावत इस्लामी ने घर बनाकर दिए कि नहीं लोगों को। FGRF है तो दावत इस्लामी का एक शोबा है ना, ये FGRF नथिंग, दावत इस्लामी एक शोबा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह घर बना के दिए कि नहीं इनको, ये कैसी NGO है। तो इसके मुकाबले में कोई हो तो बताओ। तो जितना ये चरागाह करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों की खिदमत करते हैं, कोई दूसरा हो तो सामने आए जो चरागाह को पसंद नहीं करता लेकिन खिदमत कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह काम ले रहा है, अल्लाह काम ले रहा है। गरीबों की दुआएं हम लोग ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक ब्लड दिया जा रहा है उधर, आज तक ब्लड, जब तक खून है इंशाल्लाह खून देते रहेंगे। यानी ऐसे ऐसे लोग हमारे करीब आए जो मौलानाओं को समझ में नहीं आते थे इनके, कि मौलाना लोग यार क्या करेंगे। हैरत हो गई कि हम मुंडाना सारे भी चेहरे गए, ये मौलाना भाग के निकल गए, कितने मरीजों की जानें बचा ली, थैलीसीमिया वालों की। ऐसे ऐसे इनके तासुरात। ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने जिस समत आ गए हैं सिक्के जमा दिए हैं, किसकी रहमत से? अल्लाह की रहमत से, नबी की नजर करम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम आशिकान रसूल को रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मुबारक हो। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दूसरे नबी किसी खास कौम के नबी होते थे, मगर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सारी जहां के नबी हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा। तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वगरना बेचारों का क्या हाल होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा हयात नबी यानी जिंदा है और सबका दुरूद और सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं, क्योंकि जो जवाब ना दे सके उससे सलाम करना मना है, जिसे नमाजी और सोने वाला। फरमाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहुरु शतरुल ईमान, पाकी निफ्स ईमान है। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जैसे जैसे उलमाए किराम के उम्र में इजाफा होता जाता है, उनकी अक्ल भी बढ़ती जाती है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है। फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, और नूर की आमद मरहबा। मुहम्मदिन मुस्तफा अहमदिन मुजतबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। दावत इस्लामी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह इन सबको आलिम बामद मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मिठा मिठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। आमीन। बिजाए ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, फ़ज़ाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इनके जवाबात मालूम हैं, जो नंबर बताए जाएंगे उन पर सेंड कर दीजिए। अगर आपको इनके जवाबात नहीं मालूम तो अमीर अहले सुन्नत की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, इस पर भी मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अब वहाँ मदनी मुज़ाकरा पीछे से सुनकर इनके जवाबात तलाश कर सकते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, जो सूरह कहफ को मुकम्मल पढ़े उसके लिए कितना नूर होता है। सवाल नंबर 2, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु अन्हु ने कितनी मरतबा राय खुदा में सारे का सारा घर लुटा दिया। सवाल नंबर 3, हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु के बकौल वो कौन खुश नसीब हैं जो सबसे ज़्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। कल मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से जो सवालात किए गए थे, आइए इसकी कुरानदाजी की वीडियो देखते हैं। 17 अगस्त 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जो शख्स नाहक किसी की सिर्फ बालिश्त भर जमीन दबा लेगा, कयामत के दिन उसके गले में कितना बड़ा हार पहनाया जाएगा। जवाब 7 जमीनों जितना। सवाल नंबर 2, उस खुश नसीब सहाबी रसूल का नाम बताइए जिनको 10 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की खिदमत की सआदत नसीब हुई। जवाब हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 3, वुजू से पहले अल्लाह पाक का नाम लेना कौन सी सुन्नत है। जवाब सुन्नत मुअक्कदा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: अब्दुल मुस्तफ़ा, औरंगी टाउन, कराची, सिंध, पाकिस्तान; अरशद अली अत्तारी, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान; बिनते सईद अत्तारिया, चिश्तियाँ, पंजाब, पाकिस्तान; मोहम्मद शब्बीर बिन मोहम्मद बख्श, कहरोड़ पक्का, पंजाब, पाकिस्तान; नईम रजा अत्तारी बिन हाजी गुल, चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान; बिनते इमरान अत्तारिया, गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान; रजब अली अत्तारी, पिंड दादन खान, पंजाब, पाकिस्तान। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरआ अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम रजब अली अत्तारी, पिंड दादन खान, पंजाब, पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फ़ैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम।
مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف میں امیر اہل سنت برکاتہ العالیہ کی جانب سے ہمیں مختلف دینی تحریکیں بھی عطا ہوئی ہیں، جس میں نفل روزہ رکھنے کی بھی ترغیب ہے. اسی طرح روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ہمیں ملی ہوئی ہے. اس کی روزانہ ہمیں کارکردگی بھی موصول ہو رہی ہے. آپ کو نمبر بھی دکھایا جائے گا. اگر آپ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنی کارکردگی اس نمبر پر سینڈ کر دیں، اور اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ بھی عمل کریں اور اپنی کارکردگی اس نمبر پر بھیجیں. نفل روزہ رکھنے کے حوالے سے ہم حدیث پاک سنتے ہیں. پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. ایک اور حدیث پاک ہے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. تو نفل روزے کی الحمدللہ ہم نے فضیلت بھی سنی، تو آپ بھی نیت کر لیں، اور نفل روزے کی مہم بھی جاری ہے، تو نفل روزہ بھی رکھیں اور اپنی کارکردگی جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس نمبر پر بھی سینڈ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو کارکردگی ہمیں ملی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. ربیع الاول 1448 میں ملنے والی دینی تحریکیں: 18 اگست 2026 12 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل نیتیں 2802 2802. 7 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل نیتیں 4716 4716. 5 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل نیتیں 9667 9667. 1200 بار درود پاک پڑھنے والوں کی ٹوٹل نیتیں 54686 54686. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، انشاءاللہ الکریم آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم تقریباً وقفہ ہوگا، اور تقریباً 2:45 بجے اسلامی بھائیوں کو اٹھایا جائے گا. 3:15 بجے نماز تہجد ادا کی جائے گی، دعا کا سلسلہ بھی ہوگا، اور پھر خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کا سلسلہ ہوگا. اور جانشین امیر سنت کی بھی انشاءاللہ الکریم زیارت کریں گے، ان سے بھی سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے. آپ امیر اہل سنت سے انشاءاللہ براہ راست بھی سوالات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. وہ اسلام بھائی جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے صلاۃ السلام کے بعد دارالسنہ پر رابطہ کریں، اور انشاءاللہ سحری کا ٹوکن حاصل کریں. انشاءاللہ الکریم ان کو سحری بھی پیش کی جائے گی. نیاز باکس یہ بھی تقسیم ہوتے ہیں، کیسے حاصل کر سکیں گے؟ آئیے اس کے کچھ سوالات سنتے ہیں اور طریقہ بھی سنتے ہیں. نیاز کے خواہشمند عاشقان رسول کے لیے چند شرائط: 6 ماہ سے ہر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت ہو، یا پچھلے 12 ماہ میں ہر ماہ کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کیا ہو، یا پچھلے سال میں کم از کم 112 مدنی مذاکرے دیکھے یا سنے ہوں. ٹوٹل قریباً 175 مدنی مذاکرے لائیو ہوئے تھے، یا کم از کم 313 ہفتہ وار رسائل پڑھ یا سن لیے ہوں، یا 5 نمازوں کی اذان کا جواب دیتے ہوئے کم از کم 3 ماہ ہو گئے ہوں، یا دعوت اسلامی کے مخصوص 12 دینی کاموں میں سے کم از کم 7 دینی کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے ہوں. جن کو 1448 سنہ ہجری کے محرم شریف، صفر شریف اور ربیع الاول شریف میں نیاز مل چکی ہو وہ دوبارہ نیاز ٹوکن نہ لیں. خصوصی مدنی مذاکرے میں جاتے ہوئے اگر جو شرائط بیان کی گئی ہیں اس پہ ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ کا عمل ہے تو آپ وہاں بیان کریں گے تو آپ کو ٹوکن دیا جائے گا، اور وقت مناسب پر انشاءاللہ آپ کو نیاز باکس بھی پیش کی جائے گی. ماہ ربیع الاول شریف کے مدنی مذاکروں کا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. پچھلے دنوں لاہور سے جشن ولادت ایکسپریس ایک اسپیشل ٹرین یہاں حاضر ہوئی تھی. اسی طرح اسپیشل ٹرین کے ذریعے عاشقان رسول کی آمد ہوئی تھی. بھاولپور ڈویژن جس میں مختلف شہر ہیں وہاں سے بھی ایک ٹرین پہنچی ہے. کس طرح پہنچی ہے آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے بہاولپور سے تقریباً کم و بیش 1200 اسلامی میں آج روانہ ہو رہے ہیں. وہاں بھی انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکروں میں شرکت ہوگی. سرکار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے.
مدری چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین، اب دعا مانگی جائے گی. فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور دعا میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ پاک ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا. اے اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ، اہل بیت اطہار کی پکی سچی محبت عطا فرما. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا صدقہ یا اللہ پاک ہمیں سخاوت کی نعمت عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما، تیری راہ میں قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما. اے مولا کریم، نزا کی سختیاں ہم پر آسان کر، ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور عافیت والی ہمیں موت عطا فرما. جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو، اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ پاک ہماری بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. امام حسن مجتبی کا صدقہ سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ پاک، جن کے پاس استطاعت نہیں، علاج کرانے کی طاقت نہیں، یا اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر فرما. شفا سب کا مقدر بنا، تکلیفیں دور فرما، رحمت کی نظر فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، روزگار کے جو مسائل کا شکار ہیں آسان اور حلال روزی ہم سب کا مقدر بنا دے. مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا لے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. گھر بار پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ پاک ہمارے گھروں سے بے برکتیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما. بچوں کو نیک بنا، گھر والوں کو نیک بنا، عافیت ہم سب کا مقدر بنا. دور و نزدیک سے
جو اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں، اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، بار بار حج نصیب ہو، بار بار میٹھا مدینہ نصیب کروا۔ یا اللہ پاک امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح چاہتے ہیں امیر اہل سنت، اس طرح دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ساری خطائیں کھول دے مجھے پر اپنی عطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول انشاءاللہ الکریم جانشین امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ الکریم جیسے آپ نماز تہجد کے بعد مدنی مذاکرے میں خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ وہیں ہے ٹوکن کا بھی نظام ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم آپ عام ملاقات کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حسن مجتبی سید الاسلیاء حسن مجتبی سید الاسخیاء حسن مجتبی سید الاسخیاء رقیب دوش عیسیٰ بیلا سلام جس خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت بیلا تو سلام شمع بزم ہدایت بلا تو سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا 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 آئے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے مرحبا آئے سرکار آئے آئے میرے سردار آئے خوشی کی چادر تنی تنی ہے لبوں پہ سب کے نبی نبی ہے دلوں کے گلشن کھلے کھلے ہیں گلی دلوں کی کھلی کھلی ہے پون گگن میں مچل رہی ہے گرج کے بجلی چمک رہی ہے زمین پہ ڈالی مچل رہی ہے زمین پہ ڈالی مچل رہی ہے زمین پہ ڈالی
गली में चल रही है, खुशी में झूमी नदी नदी है। आए सरकार आए मेरे सरकार, आए सरकार आए मेरे सरदार। समुंदरों में रवानियां हैं, रवा दवा सारी कश्तियां हैं, है कैफ कैसा कि दिल की धड़कन रुकी रुकी है, थमी थमी है कैसी धुन कैसी नगमगी है, ये बुलबुलें गुनगुना रही है। समा है नूरी फजा है नूरी, समा है नूरी फजा है नूरी, समा है नूरी फजा है नूरी, गली गली भी सजी सजी है। मरहबा आए सरकार आए मेरे सरकार, मरहबा आए सरकार आए मेरे सरदार। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा, सुल्तान की आमद मरहबा मरहबा मरहबा। आए सरकार आए मेरे सरकार मरहबा, आए सरकार आए मेरे सरदार आए। है शाद हर दिल जो आप आए, खुदा की रहमत भी साथ लाए, मुसीबतें भी टली टली हैं, गमों की बदली छटी छटी है, खुदा की रहमत बरस रही है, विलादत मुस्तफा हुई है, नसीब चमका